Hi friends, the topic which we will discuss today in relativity is relativity of velocity. दोस्तों, आपेक्षिकता के अंदर जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेग की आपेक्षिकता. In the previous lecture of relativity, we have discussed about relativity of time, relativity of length. Today, relativity of velocity. तो आपेक्षिकता के इससे पहले के लेक्चर में हमने समय की आपेक्षिकता एवं लंबाई की आपेक्षिकता के बारे में अध्ययन किया था. आज हम वेग की आपेक्षिकता का अध्ययन करेंगे. सो रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी और आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन रूल. तो वेग की आपेक्षिकता या आइंस्टीन का वेग योग नियम. सो रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी, वेग की आपेक्षिकता. So here we are showing two inertial frame of reference. One is S and another is S dash. S is at rest, whereas S dash is moving with velocity v with respect to S along positive x direction. तो यहां पर हमने इस चित्र में S एवं S dash दो निर्देश तंत्र दर्शाए हैं. ये दोनों निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं. S एवं S डैश में से S विरामावस्था में है, जबकि S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है. Now, let a particle is at point A and its velocity along x, y and z directions are ux, uy and uz respectively. माना कोई कण बिंदु A पर स्थित है तथा यह कण निर्देश तंत्र S में ux, uy एवं uz वेग से x, y एवं z दिशा में गतिशील है. It means the velocity of this particle in frame S is actually u and the components of u along x, y and z directions are ux, uy and uz respectively. अर्थात यह कण निर्देश तंत्र S में u वेग से गतिशील है एवं इस u वेग के x, y एवं z दिशा में घटक क्रमशः ux, uy एवं uz हैं. The velocity of the same particle in frame S dash is u dash and the components of u dash along x, y and z directions are ux dash, uy dash and uz dash respectively. इसी कण के निर्देश तंत्र S dash में वेग u dash है तथा इस u dash का x, y एवं z दिशा में घटक क्रमशः ux dash, uy dash एवं uz dash है. So let S and S dash be two inertial frame of reference and S dash is moving with velocity v with respect to S along positive x direction. माना S एवं S dash दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा S dash S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है. Let a particle is at A, जो हमने यहां पर दिखाया है, and this particle is moving with velocity u dash in system S dash. माना एक कण बिंदु A पर है तथा यह निर्देश तंत्र S dash में u dash वेग से गतिशील है. If ux dash, uy dash and uz dash are the components of u dash along x, y and z directions
respectively, and I cap, j cap, and k cap are unit vectors along x, y, and z directions respectively, then u dash is equal to I cap ux dash plus j cap uy dash plus k cap uz dash. यदि u डैश के x, y एवं z दिशा में घटक क्रमशः ux डैश, uy डैश एवं uz डैश हो तथा x, y एवं z दिशा में एकक सदिश क्रमशः i कैप, j कैप एवं k कैप हो तो u डैश इक्वल टू I कैप ux डैश प्लस j कैप uy डैश प्लस k कैप uz डैश. So, ux dash is equal to dx dash by dt dash, uy dash equal to dy dash by dt dash plus uz dash equal to dz dash by dt dash. So, यहां पर हमने वेलोसिटीज को कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में डिफाइन कर दिया है. Here, x dash, y dash and z dash represents the space coordinate of particle A and t dash represent its time coordinate. यहां कण A के स्थिति निर्देशांक क्रमशः x डैश, y डैश एवं z डैश है तथा इसका समय निर्देशांक t डैश है. Let the coordinate of A in system S be x, y, z, t and it is moving with velocity u in this system, then माना A के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक x, y, z, t हो तथा यह इसी निर्देश तंत्र में u वेग से गतिशील हो तो u इक्वल टू I कैप ux प्लस j कैप uy प्लस k कैप uz. Here ux, uy and uz are the components of u along x, y and z directions respectively. यहां ux, uy तथा uz u के x, y एवं z दिशा में घटक हैं. So, ux equal to dx by dt, uy equal to dy by dt and uz equal to dz by dt. तो यहां पर हमने वेलोसिटी को स्पेस कोऑर्डिनेट की टर्म्स में डिफाइन कर दिया है. फ्रॉम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से x इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी एक्स डैश, y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू z डैश एंड t इक्वल टू गामा t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन c स्क्वायर. हियर गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v square by c square, where c is velocity of light, whereas v is the velocity of frame s dash. Now, if we differentiate these equations, यदि हम इन समीकरणों का अवकलन करें तो अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू गामा इंटू dx डैश प्लस v dt डैश. So dx इक्वल टू गामा इंटू dx dash plus v dt dash. If we differentiate y equal to y dash, then it will be dy equal to dy dash. On differentiating z equal to z dash, we get dz equal to dz dash. And if we differentiate this equation, then dt equal to gamma into dt dash plus v upon c square dx dash. So dt equal to gamma into dt dash plus v upon c square dx dash. But ux equal to dx by dt, uy equal to
dy by dt and uz equal to dz by dt. Dx equal to gamma dx dash plus v dt dash, dy equal to dy dash, dz equal to dz dash, and dt equal to gamma into dt dash plus v by c square dx dash. So, if we find the value of ux, then we have to divide dx by dt. तो यदि हमें ux का मान ज्ञात करना हो तो dx को हमको dt से भाग देना होगा, क्योंकि ux इक्वल टू dx बाई dt. सो dx अपॉन dt अगर निकालते हो तो ux क्या आ जाएगा, गामा dx डैश प्लस v dt डैश डिवाइडेड बाय गामा dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश. सो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा. सो ux इज इक्वल टू dx डैश प्लस v dt डैश divided by dt dash plus v by c square dx dash. So ux equal to dx dash plus v dt dash divided by dt dash plus v upon c square dx dash. Now we divide in numerator and denominator by dt dash. अब यदि इस समीकरण के अंश एवं हर दोनों को dt डैश से भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा dx डैश बाई dt डैश, यहां पर dt डैश कैंसिल हो जाएगा, सो प्लस v डिवाइडेड बाय ये हमारा dt डैश कैंसिल होके 1 बन जाएगा प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश अपॉन dt डैश. सो ux इक्वल टू dx डैश अपॉन dt डैश प्लस v होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर dx dash upon dt dash. But dx dash upon dt dash is ux dash, means x component of velocity of particle in frame s dash. So dx dash by dt dash को हम ux dash से अगर रिप्लेस कर दें, then ux is equal to ux dash plus v whole divided by 1 plus v by c square ux dash. So ux equal to ux dash plus v whole divided by 1 plus v by c square ux dash. Similarly, if we want to find the value of uy, then we have to divide uy by dt. इसी प्रकार यदि हमें uy का मान ज्ञात करना हो तो dy को dt से भाग देना होगा, because uy is equal to dy by dt. So if we divide dy by dt, then uy is equal to dy dash divided by gamma dt dash plus v by c square dx dash. So uy is equal to dy dash divided by gamma into dt dash plus v by c square dx dash. Now we divide this equation by dt dash in numerator and denominator. तो इस समीकरण के अंश एवं हर में dt dash से भाग देने पर, so this will be dy dash upon dt dash divided by gamma, this will be 1 plus v by c square dx dash upon dt dash. So uy is equal to dy dash upon dt dash whole divided by gamma into 1 plus v by c square dx dash upon dt dash. But dy dash upon dt dash is equal to uy dash and dx dash by dt dash is ux dash. Here uy dash is the y component of velocity of particle in frame s dash. यहाँ uy dash कण के वेग का y घटक है जो निर्देश तंत्र s dash में है. So we replace dy dash by dt dash by uy dash and dx dash by dt dash by ux dash. So dy dash upon dt dash को हम uy dash से रिप्लेस कर देते हैं, जबकि dx dash by dt dash को हम ux dash से रिप्लेस करते हैं. Here gamma is equal to 1 upon root of 1 minus v square by c square
If we substitute v by c as beta, then gamma is equal to 1 upon root of 1 minus बीटा स्क्वायर. तो यदि हम v by c को बीटा रख दें तो गामा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. सिर्फ गामा को 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर रखो और ये हमारा यू वाई डैश और ये यू एक्स डैश हो जाएगा. सो यू वाई इज इक्वल टू यू वाई डैश रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. सो यू वाई इज इक्वल टू यू वाई डैश रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस v by c square ux dash. Similarly, if we want to find the value of uz, then divide this dz by dt. तो इसी प्रकार यदि हमें uz का मान ज्ञात करना है तो इस dz को हमको dt से भाग देना होगा. So the value of uz will be uz dash root of 1 minus beta square whole divided by 1 plus v by c square ux dash. So uz equal to uz dash root of 1 minus beta square whole divided by 1 plus v by c square ux dash. If particle moves along x-axis, then यदि कण केवल x दिशा में गति करता है तो ux dash equal to u dash, uy dash equal to 0 and uz dash equal to 0 and ux equal to u, uy equal to 0 and uz equal to 0 because the particle is moving only along x-axis. चूंकि कण केवल x दिशा में गति करता है, so the y and z components of velocities will be 0. इसलिए वेग के y एवं z घटक शून्य होंगे. But ux equal to ux dash plus v divided by 1 plus v by c square ux dash. So if we replace ux dash by u dash and ux by u, तो यदि ux dash की जगह हम u dash रखें एवं ux की जगह u रखें तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी u equal to u dash plus v divided by 1 plus v by c square u dash. So u equal to u dash plus v whole divided by 1 plus v by c square u dash. And this formula is known as relativistic law of addition of velocities. यह सूत्र वेग के योग का आपेक्षिक नियम कहलाता है. So this is actually relativistic law of addition of velocities. तो यह सूत्र वास्तव में वेग योग का आपेक्षिक नियम है. If v u dash upon c square is very much less than 1, यदि v u dash upon c square का मान 1 की तुलना में अत्यंत कम हो तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी. सो u इक्वल टू u dash प्लस v. सो u इक्वल टू u dash प्लस v एंड दिस इज एक्चुअली द गैलीलियन रिजल्ट. तो यह हमारा गैलीलियन परिणाम है. इट मीन्स इफ the value of v and u dash are very much less than in comparison to c, then the relativistic law of addition of velocities changes into its Galilean result. अतः यदि v एवं u dash का मान c की तुलना में अत्यंत कम हो तो वेग योग का आपेक्षिक नियम गैलीलियन परिणाम में परिवर्तित हो जाता है. If the velocity of particle is comparable to the velocity of light, that is u dash is approximately c. यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो अर्थात u dash is nearly equal to c,
तो इस केस में हम u डैश को c लिख देते हैं। सो u इक्वल टू c प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी सी अपॉन सी स्क्वायर। सो u इक्वल टू c प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर इंटू सी। c से c कैंसिल कर दो, c हो जाएगा u इक्वल टू c प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई सी। सो दिस विल बी c प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई सी। अब यहां पर हम c एलसीएम ले लेते हैं। c ये बन जाएगा हमारा c प्लस v अपॉन सी, और c को हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देंगे, तो c प्लस v से c प्लस v कैंसिल हो जाएगा। सो u इक्वल टू c प्लस v डिवाइडेड बाय c प्लस v अपॉन सी। सो c प्लस v से c प्लस v कैंसिल हो गया, और c हमारा न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। सो u इक्वल टू c। सो u इज इक्वल टू c। Thus, if a particle is moving with velocity of light, then it will move with the same velocity in all inertial frame, and it will not depend on the relative speed of the frame. अतः यदि एक कण प्रकाश के वेग से गति करता है तो वह सभी निर्देश तंत्र में समान वेग से गति करेगा, अर्थात प्रकाश के वेग से गति करेगा, तथा इसका वेग निर्देश तंत्र के आपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो फ्रेम की रिलेटिव स्पीड कुछ भी हो, अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो हर इनर्शियल फ्रेम में वो उसी स्पीड से मूव करेगा। It means the velocity of light is an absolute constant and is independent of the reference system. अर्थात प्रकाश का वेग परम नियतांक होता है तथा इसका मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। Now we take a problem. Prove that the velocity of light is the maximum range of velocity attainable in nature. सिद्ध करो कि प्रकाश का वेग प्रकृति में प्राप्त किए जाने वाला अधिकतम वेग होता है। मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी वेलोसिटी नेचर में प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। प्रकृति में प्रकाश के वेग से अधिक वेग प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अ पार्टिकल बी मूव विथ वेलोसिटी c माइनस a in a frame s dash and frame move with the velocity c minus b relative to frame s। माना एक कण निर्देश तंत्र s डैश में c माइनस a वेग से गति करता है तथा निर्देश तंत्र s डैश s के सापेक्ष c माइनस v वेग से गति करता है। सो पार्टिकल की वेलोसिटी c माइनस a एंड फ्रेम की वेलोसिटी c माइनस b। इट मीन्स u डैश इक्वल टू c माइनस a and v equal to c minus b. So v equal to c minus b. But u equal to u dash plus v divided by 1 plus v u dash upon c square. यहां पर हमने ये माना है कि पार्टिकल केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y एंड z दिशा में उसका कोई भी घटक नहीं है। सो इस फॉर्मूले में u डैश को हम c माइनस ए से एंड v को हम c माइनस बी से रिप्लेस करें। सो u इक्वल टू c माइनस ए प्लस c माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस c माइनस बी इंटू c माइनस ए अपॉन c स्क्वायर। सो u इक्वल टू c माइनस ए प्लस c माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस c माइनस बी इंटू c माइनस ए अपॉन c स्क्वायर।
अब अगर इसको ओपन करें, सो दिस विल बी 2c माइनस a प्लस बी, और इसको ओपन करोगे सो सी स्क्वायर एलसीएम आएगा, सो सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और उसको भी अगर आप ओपन कर देंगे सो 2c स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी होल अपॉन सी स्क्वायर. So u equal to 2c minus a plus b divided by 2c square minus a plus b into c plus ab by c square. अब एक c को हम इसमें डिवाइड करने में यूज कर लेते हैं और एक c को हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे. So this will be 2c minus a plus b divided by 2c माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई सी, और नीचे जो एक सी बचा था वो न्यूमरेटर में हमारा ट्रांसफर हो गया है. सो यू इक्वल टू 2c माइनस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2c माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई सी इंटू सी. नाउ यू अभी हमने ये निकाला था, सिंस ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट and their values is greater than 0. So AB by C will be greater than 0. चूंकि A एवं B नियतांक हैं एवं इनके मान धनात्मक हैं, सो AB by C का मान 0 से अधिक होगा. इसका मतलब 2c माइनस ए प्लस बी की वैल्यू 2c माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई सी के कंपेरिजन में कम होगी. So 2c minus a plus b plus ab by c is greater than 2c minus a plus b. So अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो ये टोटल वैल्यू हमारी कम हो जाएगी. इट मीन्स u इज लेस देन c. चूंकि अंश का मान हर से कम है इसलिए ये पूरा मान एक की तुलना में कम होगा. So u is less than c. So u is less than c. अतः कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में कम होगा. द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. Thus, the composition of two velocities which are separately less than c can never exceed c. अतः दो ऐसे वेगों का संयोजन जो पृथक रूप से प्रकाश के वेग की तुलना में कम हो का मान कभी भी c से अधिक नहीं होगा. सो u इज लेस देन c. नाउ वी टेक अनदर कंडीशन. अभी हमने u डैश की वैल्यू c से कम मानी थी, v की वैल्यू भी c से कम मानी है और रिजल्ट हमको मिला है u इज लेस देन c. अब हम मान रहे हैं कि u डैश भी हमारा c के इक्वल है, v भी हमारा c के इक्वल है. तो हम चेक करते हैं कि u की वैल्यू c से ज्यादा होगी या नहीं होगी. अब u का फॉर्मूला हमारा ये था, so u डैश को हम c पुट करें एंड v को भी हम c पुट करें, c हो जाएगा u इज इक्वल टू c प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस c इंटू c अपॉन c स्क्वायर. So u equal to c plus c divided by 1 plus c into c upon c square. So c square by c square 1 हो जाएगा. So this will be 2 and this is 2c. So u is equal to 2c upon 2. So u equal to 2c upon 2. अब 2 से 2 कैंसिल कर दो. So u is equal to c. So u equal to c. सो u डैश एंड v दोनों की वैल्यू जब c थी तो भी हमको u की वैल्यू c मिल रही है. मीन्स u की वैल्यू किसी भी कंडीशन में c से ज्यादा नहीं होगी. Thus, the velocity of light is the maximum range of velocity attainable in nature. अतः प्रकाश का वेग
प्रकृति में प्राप्त किया जाने वाला अधिकतम वेग होता है। So here we end our session. इस सेशन में हमने रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी के बारे में स्टडी की है और साथ में हमने ये भी प्रूव किया है कि प्रकृति में प्रकाश के वेग से अधिक वेग किसी भी परिस्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सो गुड बाय।